Hello viewers, myself Maqsood Ahmed, faculty of Commerce Department, SS College, Hailakandi. In our last video, we have learned about meaning of business and what is economic activity. Today, we will see the difference between business, profession and employment. Business, the definition we have earlier discussed, is an economic activity where the connection of purchase or production or sale of goods are done with the main objective of earning profit. Example is fishing, manufacturing goods, or mining, producing or selling of any kind of goods, banking. So all these activities, all these economic activities, if anyone is doing, then we can call as a business. And profession. Profession means a person, if he have special knowledge of a particular field, then we can call him as a professional. Professional includes those activities which requires special knowledge to be skilled in an occupation or in a particular field. For example, we can say as a doctor, as a profession, if अगर कोई आदमी डॉक्टर है तो डॉक्टर उनका प्रोफेशन है. इफ ही इज अ लॉयर देन उसका प्रोफेशन लॉयर है. अगर वो अकाउंटेंट का काम करता है, ही हैव द परफेक्ट नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, प्रॉपर नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, देन हम उनको सीए कह सकते हैं. सो इन कैटेगरी के लोगों को हम प्रोफेशनल कहते हैं, प्रोफेशन भी कह सकते हैं. नेक्स्ट कम टू द एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन व्हिच पीपल वर्क फॉर अदर, Employment means whenever a people work for other for getting or to get some remuneration or some salary or some wages, then we can call the process of employment. अगर कोई आदमी दूसरे के अंडर में काम करता है for the benefit of getting salary, remuneration और wages, तब हम इसी प्रोसेस को हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं. तो जो एम्प्लॉयमेंट देता है उसको हम एम्प्लॉयर कहते हैं, और जो काम करते हैं उन लोगों के उन आदमी के अंडर में, उनको हम एम्प्लॉई कहते हैं. दोज पर्सन हु वर्क फॉर अदर, उनको हम एम्प्लॉई कहते हैं, और जो काम देता है उसको हम एम्प्लॉयर कहते हैं. एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं वर्कर्स, एम्प्लॉइज, सेल्समैन, all this kind of or categories of person work for other for the main objective to get the remuneration or salary or wages. In my upcoming video, I will discuss about the difference between the remuneration, salary and wages. There is a difference in between these words. So in my upcoming videos, I will discuss. I hope you have understood the difference between the business, profession and employment. Next, see more elaborate answer, the difference between the business, profession and employment. This question is, this topic is very important for exam point of view. First, basis of destruction, mode of establishment. Starting after completing some legal formalities if needed. तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ सम लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा करना पड़ता है. जैसे कि अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, सोल मीन सिंगल ओनर, देन उसके लिए थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है. अगर आपका बिजनेस जीएसटी करता है तो कर सकता है, देन म्यूनिसिपैलिटी से परमिशन लेना पड़ता है और थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है. अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस है, देन
उसके लिए भी पार्टनरशिप का डीड बनाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है। तो ऑल दिस आर नॉट कंपल्सरी, बट अगर कोई चाहे तो कर सकता है। अगर आपका बिजनेस कंपनी है देन आपका रजिस्ट्रेशन करना कंपल्सरी है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? तो लीगल, देयर इज सम लीगल फॉर्मेलिटीज इन केस ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट, इन केस ऑफ प्रोफेशन, द मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, membership of a professional body and certificate of practical requirements। तो प्रोफेशनल होने के लिए यू हैव टू क्वालिफाई सम एग्जाम, और आपको उस प्रोफेशनल बॉडी जो है, जैसे कि बार एसोसिएशन है एडवोकेट्स के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी उनका भी एक प्रोफेशनल बॉडी है, सीए का भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी है ICAI। तो उन ऑर्गेनाइजेशन से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उन ऑर्गेनाइजेशन से मेंबरशिप लेना पड़ता है अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो। सेम इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो, अपॉइंटमेंट लेटर मस्ट बी इश्यूड टू द एम्प्लॉई, मस्ट इशू टू द एम्प्लॉई बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को क्या करना पड़ता है? एम्प्लॉयर मीन जो नौकरी देता है, उनको, जो एम्प्लॉई है उनको एक अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ता है। आप अपॉइंटमेंट लेटर में टर्म्स एंड कंडीशन रहता है, कितना सैलरी मिलेगा, कितना दिन के लिए ये एम्प्लॉई आपके अंडर में काम करेगा, एवरीथिंग मस्ट बी मेंशन्ड, और लेटर देना पड़ेगा। तो ऑल दीज आर मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। नेक्स्ट, नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क बिजनेस में क्या होता है? प्रोविजंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। जनरली गुड्स एंड सर्विसेज से बिजनेस डील करता है, गुड्स और सर्विसेज। इन केस ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशनल सर्विस ऑफ एक्सपर्ट्स नेचर, वो प्रोफेशनल जो आदमी है, वो सपोज डॉक्टर मान लो, आपने ट्रीटमेंट देगा, एक्सपर्ट्स इन नेचर, वो उस पार्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट है, वो अपना एक्सपीरियंस नॉलेज देगा, आपको ट्रीटमेंट करेगा। इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेचर ऑफ वर्क है work allotted by the employer according to the contract। as per the contract employer आपको काम कराएगा। बट in case of profession, कोई एम्प्लॉयर भी नहीं है, और आपको आपका जिस फील्ड में नॉलेज है आप उसी फील्ड में ही काम कर सकते हैं। एंड बिजनेस में यू हैव टू डील विद गुड्स और सर्विसेज। क्वालिफिकेशन, इन केस ऑफ बिजनेस नो क्वालिफिकेशन नेसेसरी, नो क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। इट मीन्स कोई भी क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना जरूरी नहीं है। इन केस ऑफ प्रोफेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बिकॉज प्रोफेशनल हम तब कह सकते हैं जब उस पर्सन के पास कोई स्पेशल नॉलेज हो इन ए पर्टिकुलर फील्ड, सिस्टमेटिक बॉडी हो, और उसके पास एक पर्टिकुलर स्किल हो इन ए पर्टिकुलर फील्ड, देन हम उसको प्रोफेशनल कहते हैं। तो प्रोफेशनल होने के लिए क्वालिफिकेशन इज मस्ट मैंडेटरी। इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्वालिफिकेशन डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के ऊपर। अगर एम्प्लॉयर अच्छा काम करवा रहा है कि स्किल काम करवा रहा है, तो स्किल होना जरूरी है। अगर अनस्किल्ड काम करवा रहा है तो स्किल होने का कोई भी जरूरत नहीं। इन केस ऑफ कैपिटल, नेक्स्ट पॉइंट इज capital investment. In case of business, there is capital is needed as per the size of the business। बिजनेस का जितना साइज बड़ा होगा उतना बिजनेस का कैपिटल भी ज्यादा चाहिए। इन केस ऑफ प्रोफेशन, इतना भी ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए। आपको एक चैम्बर खोलना है, आपको इतना भी, जो भी प्रोफेशन होना चाहता है उनको कैपिटल ज्यादा होना नहीं चाहिए, थोड़ा भी होने से चलता है। बट इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो भी एम्प्लॉई किसी के अंडर में काम करेगा उनको कोई भी पैसा देना नहीं पड़ेगा, कोई भी पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा एज ए एम्प्लॉई। नेक्स्ट, रिटर्न, रिवार्ड और रिटर्न। इन केस ऑफ बिजनेस करने के बाद हमें रिटर्न में प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशन में प्रोफेशनल फीस मिलता है, डॉक्टर हो तो डॉक्टर का फीस मिलता है, टीचर हो तो टीचिंग फीस मिलता है, एडवोकेट हो तो एडवोकेट का फीस मिलता है। अगर आप एम्प्लॉई है देन आपको सैलरी और वेजेस मिलेगा। तो सैलरी एंड वेजेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। सैलरी जनरली स्किल्ड वर्कर को मिलता है, सैलरी जनरली स्किल्ड वर्कर को मिलता है।
जो भी स्किल वर्कर है, स्किल वर्कर मीन्स उसके पास पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसी आदमी को सैलरी मिलता है। अगर सैलरी रेगुलर इंटरवल मिलता है, अगर वो काम में एक दिन का मिस हो गया देन भी उसको भी सैलरी मिलेगा। और वेजेस अनस्किल्ड वर्कर को मिलता है, वेजेस अनस्किल्ड वर्कर को मिलता है। जिनका कोई स्किल नहीं है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, उनको वेजेस मिलता है। उसको हम लोकली दिन मजूरी कहते हैं। अगर आप आज का दिन का काम कर रहे हो तो दिन आपको आज का दिन का सैलरी मिलेगा, डेली वाइज वेजेस मिलता है। बट सैलरी का ऐसा नहीं है मंथ के एंड में एम्प्लॉयर आपको सैलरी देगा, पूरा 30 डेज का वर्क का सैलरी पूरा एंड या मंथ का एंड में देगा। लेकिन वेजेस का ऐसा नहीं होता है। वेजेस जनरली डेली काम के बेसिस पे दिया जाता है एंड एट द एंड ऑफ द डे जो भी वर्कर आपके अंडर में काम कर रहा है उनको वेजेस दिया जाता है। नेक्स्ट, रिस्क। इन केस ऑफ बिजनेस the degree of risk is high because business is always associated with the risk. We have earlier discussed business risk, business के साथ risk सब समय जुड़ा रहता है। बिजनेस जितना भी बड़ा होगा रिस्क भी इतना भी बड़ा होगा, बिजनेस छोटा है तो रिस्क भी छोटा होगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ प्रोफेशन रिस्क इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा रिस्क है, बिकॉज इन केस ऑफ प्रोफेशन आपका प्रोफेशनल अगर एक्टिविटी में कोई भी गड़बड़ होता है देन रिस्क थोड़ा थोड़ा रिस्क है। बट इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट देयर इज नो रिस्क इज देयर फॉर द एम्प्लॉई। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 point is enough for your exam point of view. So now we will learn, earlier topic is over. We have seen the difference between business, profession and employment. Now we will see the objective of business. Business का क्या objective? Generally there is two objectives are there. One is called economic objective and another is social objective. Economic objective means पैसा related objective और social objective means सोसाइटी का बेनिफिट करने का ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव से आप बिजनेस नहीं चला सकते हैं, बिकॉज अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड बिजनेस मीन बीइंग बिजी इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सोशल एक्टिविटी। So the activity must be in social in nature and legal activities or must be. तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव दो है, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है और एक सोशल ऑब्जेक्टिव। तो चलो देखते हैं। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आर द ऑब्जेक्टिव which includes earning of profit, market standing, innovation, optimum utilization of resources and improving the productivity. And the social objectives are quality of goods and services at favorable or fair price, avoidance of antisocial and unfair trade practices. It's a word mistakes is there. Next, generation of employment, employee welfare and community services. Let's see one by one. Earning of profit. So earning of profit is the main objective of business. We have earlier seen business का main मकसद ही होता है profit earn करना। Without profit earning business market में stand नहीं कर सकता है, business market में survive नहीं कर सकता है और बिजनेस मार्केट में ग्रोथ भी नहीं कर सकता है। विदाउट प्रॉफिट सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल एंड द ग्रोथ इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अगर बिजनेस का प्रॉफिट नहीं होता है, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट नहीं होता है, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा नहीं होता है, तो बिजनेस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा ड्यू टू कंपटीशन। और क्या होगा, बिजनेस का ग्रोथ भी नहीं होगा। नेक्स्ट, मार्केट स्टैंडिंग एंड क्रिएशन ऑफ कस्टमर। नेक्स्ट, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब है क्रिएटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर। जितना भी और हम इसको भी ये भी कह सकते हैं कि
creating or capturing maximum number of market shares. मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्केट शेयर्स. अगर बिजनेस मार्केट में मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्केट शेयर अगर ले लेता है देन क्या होगा, उसका लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट सेल्स होगा मार्केट में. जितना ज्यादा सेल्स होगा इतना ज्यादा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्या है देखते हैं. Innovation means making something new. अगर बिजनेस के पास इनोवेशन नहीं है देन मार्केट में लॉन्ग लास्टिंग लॉन्ग टाइम मार्केट में टिक नहीं सकता है. बिकॉज जिनके पास प्रोडक्ट इनोवेशंस है वो मार्केट में ज्यादातर टिक सकता है. अगर मार्केट में आपका पास कोई इनोवेशन नहीं होगा, इनोवेशन मीन्स इनोवेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स. आपके पास लास्ट 5 years आप सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं मार्केट में, आपने नया कुछ नहीं ला रहे हैं, देन आपका कस्टमर क्या होगा, कस्टमर आपका प्रोडक्ट यूज कर करके उनको भी क्या हो जाता है, कस्टमर का कंज्यूमर का टेस्ट में भी क्या इलास्टिसिटी जो कहते हैं, टेस्ट में भी प्रॉब्लम हो जाता है. देन कस्टमर क्या चाहता है, न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आए. तो आपको भी अकॉर्डिंग टू अब जब आप ग्रोथ कर रहे हैं, प्रॉफिट भी ज्यादा कमा रहे हैं, देन आपको इनोवेशन भी करना जरूरत होता है. अगर मार्केट में हम इनोवेशन कर रहे हैं, इनोवेशन मीन्स बेटरमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, बेटरमेंट ऑफ मशीन्स, बेटरमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट क्वालिटी, उन सबको हम इनोवेशन कह सकते हैं. तो और एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है इनोवेशन करना. नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मीन्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज मीन मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी, ऑल दिस थिंग्स. बिजनेस का जो भी मटेरियल्स, रॉ मटेरियल हो सकता है, फिनिश प्रोडक्ट हो सकता है, मनी, मशीनरी, मैन, सबका मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, बेस्ट प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है. अगर एम्प्लॉय आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, देन एम्प्लॉय से काम करवाना है. एम्प्लॉय आ रहा है, एम्प्लॉय के पास काम नहीं है, एम्प्लॉय ऐसे बैठ रहा है, जा रहा है और मंथ के एंड में सैलरी लेके जा रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन से, देन इट्स नॉट इन गुड ऑर्गेनाइजेशन. तो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय से काम करवाना है, जितना उनको सैलरी मिल रहा है एज पर दी सैलरी उनको काम करवाना है. और मटेरियल जो भी है, रॉ मटेरियल हो, फिनिश प्रोडक्ट हो, उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है. आपके पास मनी है, फंड का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है. मशीनरीज है, मशीनरीज को भी प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है. देन हम उसको क्या कह सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अगर ज्यादा ऑप्टिमम रिसोर्सेज यूटिलाइज्ड होगा देन प्रॉफिट भी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा. नेक्स्ट, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी मीन्स इंप्रूविंग ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. अगर ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्स वेस्ट कम होगा, एम्प्लॉइज अच्छी तरह काम करेगा, देन ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी आएगा. प्रोडक्टिविटी का मतलब है प्रोडक्शन ज्यादा होना, एम्प्लॉइज से वेस्टेज कम होना, मनी प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इज टोटली रिलेटेड विद द इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी. जितना भी रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूटिलाइज होगा देन प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा. So all these are social objective of a business. Now we will see the social objective of business. Social objective, from the word we have already understood the social objective क्या है. Social objective means सोसाइटी को क्या क्या बेनिफिट देना है. आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, आपको प्रॉफिट भी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए, सर्वाइवल भी चाहिए, मार्केट शेयर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी चाहिए. उसके साथ साथ आपको सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. सोसाइटी को आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? सोसाइटी को अगर गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो एज रीजनेबल प्राइस, एट अ फेयर प्राइस, देन आप सोसाइटी के लोगों को आप हेल्प कर रहे हैं. तो सोशल ऑब्जेक्टिव फर्स्ट क्या है, कंज्यूमर्स जो है, कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को आप क्या कर रहे हो, क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो एट ए रिजनेबल प्राइस, और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो एट ए रिजनेबल प्राइस. आप उनसे ज्यादा चार्ज नहीं कर रहे हो, और प्रोडक्ट
जो दे रहे हो प्रोडक्ट का अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कस्टमर को आप दे रहे हो, कंज्यूमर को आप दे रहे हो, जिनको यूज करके कंज्यूमर क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। ये हो गया हम लोग का पहला सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मीन ब्लैक मार्केटिंग, एडल्टरेशन। आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल ठीक नहीं है, जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो ये कंज्यूमर का हेल्थ के ऊपर ठीक नहीं है। आप मार्केट में जो भी सामान यूज कर रहे हो, सपोज यू आर डूइंग ए बिजनेस ऑफ ड्रग्स स्मगलिंग, देन इट इज नॉट ए सोशल एक्टिविटी। इन सबको अवॉइड करना पड़ेगा बिजनेस को, जो कंज्यूमर्स और सोसाइटी को हार्म जैसा ना हो। नेक्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जब भी बिजनेस चला रहे हो, देन यू आर हायरिंग सम पीपल, इट मीन्स यू आर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। अगर आप बिजनेस चला रहे हो, देन एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हो, तो सोसाइटी का क्या होगा, लोगों को नौकरी मिल रहा है, नौकरी मिल रहा है मीन सोसाइटी के लोगों को पैसा मिल रहा है, पैसा घर में जा रहा है, देन सोसाइटी का लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। सो इट्स अ गुड थिंग। तो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज एन सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। देन एम्प्लॉय वेलफेयर, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, देन एम्प्लॉय को क्या मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन से बेनिफिट मिलना चाहिए, जैसे कि फेयर वेजेस होना चाहिए और फेयर सैलरी मिलना चाहिए। जितना काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू वर्क उनको सैलरी मिलना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर गुड वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। जो भी एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन को वर्कर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको अच्छे एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। बिकॉज अगर अच्छे एनवायरनमेंट में अगर उनको काम नहीं कर पा रहे हैं, देन उनका हेल्थ कंडीशन खराब हो जाएगा। हाँ, मेडिकल फैसिलिटी मिलना चाहिए, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी मिलना चाहिए, चिल्ड्रन का एजुकेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। हाँ, मेंटल हेल्थ उनको टोल मिलना चाहिए घूमने फिरने के लिए। ऑल दिस आर एम्प्लॉइज वेलफेयर। अगर एम्प्लॉय खुश हो जाएगा, देन एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहेगा। अगर एम्प्लॉय अपना दिल से ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, देन ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट अच्छी तरह हो सकता है। बिकॉज अगर ऑर्गेनाइजेशन का मेन ही एम्प्लॉय है, अगर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी तरह सेटिस्फैक्टरी है, देन ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई जा सकता है। नेक्स्ट कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस मीन्स जैसे कि कॉन्सेप्ट है CSR। आप जब हायर स्टडी करोगे तो आपको मिलेगा सर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इट मीन्स जब भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, कंपनी काम कर रहा है, उन कंपनी के ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंपनी प्रॉफिट ले रहा है मैक्सिमम कस्टमर से, तो उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि सोसाइटी पे कुछ कंट्रीब्यूट करें। जैसे कि कंट्रीब्यूशन अगर आप सपोज मान लो रिलायंस जैसा करता है, रिलायंस का एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, टाटा का भी है। जितना भी बड़ा बड़ा कंपनी आप देख रहे हो, आप हम लोग का प्रोडक्ट यूज करते हैं, उन सब कंपनी का एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, अपना लाइब्रेरी है, अपना हॉस्पिटल है। तो ये करके कम्युनिटी के लोगों को आप क्या कर रहे हो, सेवा दे रहे हो, हाँ, उनको हेल्प कर रहे हो। ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सोशल ऑब्जेक्टिव। आई होप you have understood all the topics. In our next lecture, we will learn the role of profit in the business. It's a very important topic. So, that's all for today. Thank you so much.